So this is the requirement for the shear reinforcement. First tau v, that is nominal shear stress, and tau c. So at initial, if tau v is less than tau c, the meaning is concrete is itself is capable of resisting the shear stress generated, right? So the meaning is there is no requirement of providing shear reinforcement. Though for the holding top and bottom reinforcement bar, we require to provide the minimum reinforcement. Right, so the criteria for the minimum reinforcement is given. So that is available on page number 26.5.1.6. So if you can see over here, it is written minimum shear reinforcement. Right, so what is the minimum shear reinforcement required? So the minimum shear reinforcement in the form of stirrup shall be provided such that, so this is the equation from which you can find the minimum shear reinforcement, right? So this one is the equation. So I am writing this equation. So this is the equation. Now we will see what is ASV. Now A stands for area, S stands for stirrup, and V stands for vertical stirrup, right? So ASV stands for area of vertical stirrup, right? Then SV. SV is spacing along the length of the member. So over here, if I can show you, so over here, you can see this is the ring or the stirrup bar, right? So this is placed with respect to some distance, one by one. So that is called the spacing of the stirrup. So this is called the spacing of the stirrup, right? So SV is the spacing of stirrup required, right? So then V is width of the stirrup, width of the section, and Fi is the strength. So we will find, so this is the minimum requirement, and this one is equation from clause 26.5.1.6. 5.1.6. Now if you can see over here, width, this we know, this value also known. So over here unknown values are ASV and SV, right? So initially you require to find, or you require to assume the diameter of stirrup. So remember one thing, the minimum diameter of stirrup for beam is 12 mm dia, minimum. Sorry, 8 mm dia, sorry, 8 mm dia. Right, so for stirrup, 8 mm diameter is the minimum requirement. Right, so you can choose diameter which is more than 8 mm. Right, and up to 12 mm, 14 mm is only the requirement for the shear reinforcement. If you increase the diameter of bar, the elasticity available in the steel is decreased. So you cannot easily bend the ring, right? That's why the minimum requirement is 8, and you can go as far as 14 mm diameter, 16 mm diameter, but not more than that, because it will not easily bend, right? Because as soon as diameter increase, the carbon content decrease, that will
having the less ductility, less elasticity, so it will not easily bend, right? So minimum diameter is 8 mm diameter. Now how to find area of vertical stirrup? Now why this is given ASV? Because somewhere the inclined stirrups are also provided, right? Suppose this is your beam, right? Suppose this is your beam and these are the bottom reinforcement bar, these are the top reinforcement bar. So these stirrups are provided to connect your top and bottom reinforcement bar like this. So if this is placed vertically from bottom to top, then that is called the vertical stirrup, right? But somewhere at 45-degree angle also the stirrups are provided like this, at angle of 45 degree with some spacing. Instead of vertical, the reinforcement are provided with 45 degree, right? Like this. So instead of this, it's a 45-degree angle. So that is also the case. But in practice, the vertical stirrups are generally provided on site. So we are not going into the incline stirrup right now. So how to find this? So as I explained in last lecture, that the stirrups are defined as one-legged or two-legged or three-legged. So as per number of leg, you can find the area of vertical stirrup. So area of vertical stirrup is equal to number of leg multiply by area of one bar, right? सो दिस इज योर स्टीरअप, ये आपका स्टीरअप है, तो इसका कोई डायामीटर होगा. सो डायामीटर सर्कुलर है, नंबर ऑफ लेग, so generally this is 215, so only single leg, sorry, this ring is sufficient. So this ring is having two leg, this is called the two leg stirrup because of the two vertical lines. So number of legs are 2 into diameter, area of one bar is pi by 4, 8 square, right? So I'm writing over here, assuming dia of stirrup is equal to 8 mm, right? Chalo, find out ASV. 100.53. 100.53. So this is my diameter of one ring. ये पूरा जो एक रिंग है उसका मुझे डायमीटर मिल गया, राइट? नाउ next, now I can put the value of ASV in this equation. I can find the spacing of bar, spacing between the stirrup. So write down or put all the value and find out the spacing. So 100.53 into 0.87 into f.415 divided by 0.4 into 215. So you can find the spacing. So this spacing, vertical spacing, 422.05. 422.05, right? So this is my spacing. Now as in area, what we are doing, area we are increasing the area. Suppose आपको यहाँ पे AST मिला 502, तो 502 का you can provide more than 502 mm square. Same way for spacing you need to decrease. मतलब 422 है तो 420 जो आया है उससे बढ़ाना नहीं है, you need to decrease the value of spacing. Is it clear? Yes, sir. Right. So this is the SV you are getting from the minimum requirement. Now code has given the criteria that what should be the
रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेसिंग, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेसिंग, मतलब कि अगर ये है मेरा बीम तो ये दो स्टीरअप के बीच का मिनिमम स्पेसिंग कितना होना चाहिए। अगर मिनिमम नहीं होगा तो मैंने वीडियो में आपको बोला था दैट वन ऑफ द क्रैक अकर्स एंड दैट क्रैक इज, कौन सा क्रैक बोला था मैंने? कौन सा क्रैक था वो, किसी को याद है? शेयर क्रैक, राइट। तो शेयर क्रैक प्रोपेगेट होगा फ्रॉम बॉटम टू टॉप, राइट। तो वो अगर स्पेसिंग ज़्यादा होगा इन दोनों के बीच में, इतना सारा स्पेसिंग करेगा होगा और आपका क्रैक यहाँ से प्रोपोगेट होगा तो क्या होगा, वो इजीली पास थ्रू हो जाएगा फ्रॉम बॉटम टू टॉप। लेकिन अगर आपने स्पेसिंग इस तरीके से डाला होगा कि क्रैक प्रोपोगेट तो होगा बट बीच में रेनफोर्समेंट आ जाएगा, दैट मीन्स दैट रेनफोर्समेंट विल नॉट अलाउ the propagation of crack from bottom to top, right? So that's why code has given the minimum requirement that what should be the minimum distance at least you require to provide, or you can say the maximum distance that need to be follow for the spacing of bar. So वो हम देखेंगे. So again we will see in clause number 40 shear की design का clause. In clause number 40 नहीं, क्लॉज नंबर 40 में नहीं होगा स्पेसिंग का चेक. आई एम डूइंग विद द क्लॉज नंबर 40. Yes, maximum spacing of shear reinforcement. Clause number 26.5.1.5, राइट. शेयर मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना, उससे ज़्यादा आपका स्पेसिंग नहीं होना चाहिए दो स्टीरअप के बीच में. So the maximum spacing of shear reinforcement measured along the axis of member shall not exceed 0.75 d for vertical stirrup. अगर आप वर्टिकल स्टीरअप प्रोवाइड करते हो तो आपका स्पेसिंग 0.75 d से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो सपोज यू हैव योर SV वैल्यू, देन SV शुड नॉट मोर देन 0.75 d फॉर वर्टिकल स्टीरअप एंड D फॉर इंक्लाइन स्टीरअप. अगर आप इंक्लाइन स्टीरअप 45 डिग्री पे प्रोवाइड करते हो, एज आई एक्सप्लेन, अगर कोई इंक्लाइन स्टीरअप अगर आपने प्रोवाइड किया है ऐसे 45 डिग्री एंगल वाला, देन D, तो SV की वैल्यू D से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर द इंक्लाइन. एंड यहाँ पे लिखा है इन नो केस शैल बी स्पेसिंग एक्सीड 300 मीटर. और 300 मीटर्स mm से तो ज़्यादा स्पेसिंग रखना ही नहीं है आपको दो स्टीरअप के बीच में, राइट. सो यू नीड टू फॉलो दिस टू चेक फॉर द स्पेसिंग क्राइटेरिया, right? So 26.5.1.5. So over here I am writing clause 26.5.1. कौन सा था? 1.5. 5. Your SV should not more than 0.75 d. हम तो वर्टिकल प्रोवाइड कर रहे हैं तो चलो. सो 0.75 d की वैल्यू क्या आती है? D मतलब 400. क्या आई वैल्यू? 300. राइट. और सेकंड जो है वो तो 300 से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए. तो इन तीनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी
वो आपको प्रोवाइड करनी है फॉर योर spacing. So right now your by calculation spacing is 900, but as per codal provision you required to provide only maximum 300 mm. So once you do this check, at final you can write that for provide 8 mm diameter, sorry, provide 2-legged 8 mm diameter, 8 mm diameter vertical stirrup at a distance of 300 mm सेंटर टू सेंटर. अगर एसवी की वैल्यू 300 से कम है तो वो लेनी है, बट 300 और ये दोनों में से जो भी मिनिमम होगी उससे ज़्यादा है तो यू नीड टू टेक मिनिमम. इन तीनों में से मिनिमम लेनी है इंशाल्लाह. क्लियर? Yes. Right. So this is the design for the tau v less than tau c condition. ठीक है, तो हमारा ये डिज़ाइन हो गया. अगर tau v लेस देन tau c है तो ये फाइनल आपका स्टेटमेंट. और आपको आपकी फिगर में यहाँ पे स्टीरअप लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखना है, यू कैन राइट ओवर हियर. अभी यहाँ पे 2 लेग लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली यू नीड टू राइट 8 mm डाया एट 300 mm center to center. So this way you can complete your diagram. और अगर आपको लेंथ व्यू में आपका डायग्राम ड्रॉ करना है एलिवेशन में, सो इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, तो देखो ये रहा आपका बॉटम का बार. एज आई एक्सप्लेन अर्लियर ऑल्सो दैट योर बीम आपकी लेंथ इतनी है एक्चुअली, ये साइड के तो 2 सपोर्ट है, फिर भी यू नीड टू एक्सटेंड योर बीम रेनफोर्समेंट इनटू द सपोर्ट. सपोर्ट में कहाँ तक, ये साइड कवर छोड़ के, या इतना साइड कवर है दोनों साइड, उतना छोड़ के आपको आपके बार को एक्सटेंड करना है. ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ जितना एक्सटेंड करना है ये रहा. राइट, देन स्टीरअप. स्टीरअप है यहाँ, ये इस तरीके से आएगा. और राइट नाउ वी आर प्रोवाइडिंग सेम स्पेसिंग थ्रू आउट द लेंथ. अगर आपको चाहिए कि इतने डिस्टेंस पे कितना स्पेसिंग होगा, यहाँ पे कितना स्पेसिंग होगा, लाइक यहाँ पे मैंने आपको बताया था दैट शेयर फोर्स डायग्राम. तो अगर आपको चाहिए कि सपोज ये 8 मीटर है तो 2 मीटर में कितना डिस्टेंस है चाहिए, बाकी के में कितना चाहिए, तो आपको क्या करना है, 2 मीटर के ऊपर यहाँ पे शेयर फोर्स फाइंड करना है. ये शेयर फोर्स के लिए टाउ वी फाइंड करो, उसके लिए टाउ सी मिलेगा आपको. टाउ सी तो कॉमन ही होगा, तो टाउ वी फाइंड करो, टाउ सी फाइंड करो. देखो टाउ वी लेस देन टाउ सी हो रहा है, फिर उस हिसाब से आपको आपका स्पेसिंग भी मिल जाएगा. Right, so that way you can find. So over here this is 8 mm at 300 mm center to center. This is your top anchored bar, 2 number 12 mm dia. Then this is your 8 mm, so 2 number 20 mm dia. Right, this is your capital T और यहाँ पे ये होगा आपका स्पेसिंग ऐसे. ठीक है, वन मोर थिंग I am explaining you that the very first stirrup
फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट। फेस ऑफ द सपोर्ट से जो पहला आप स्टीरअप प्रोवाइड करोगे वो मिनिमम 50 mm डिस्टेंस पे होना चाहिए। मिनिमम नहीं, मैक्सिमम, 50 से कम नहीं। राइट, बिकॉज दिस इज द क्रिटिकल जोन। तो यहाँ पे आप 300 mm डिस्टेंस नहीं लगा सकते। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. राइट, एंड मैंने ऐसे नहीं लिखा है दिस इज गिवन इन अर्थक्वेक कोड। राइट, ये भी कोडल प्रोविजन है, नॉट IS 456 बट अदर अर्थक्वेक कोड, उसके डिटेलिंग में है दैट ये फर्स्ट स्टीरअप शुड प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 mm, उसके बाद 300 300 300, फिर यहाँ पे फिर से 50 mm आ जाएगा। दिस इज द क्रिटिकल जोन। क्रिटिकल जोन में ही आपने डिस्टेंस ज़्यादा कर दिया 300 जो आता है वो, तो यहाँ से आपका क्रैक प्रोपेगेट हो जाएगा। राइट, so this one is the full design for the singly reinforced beam. Right, full design in terms of if only minimum shear reinforcement is required. अभी मैं आपको बताती हूँ what if the tau v greater than tau zero. राइट, तो शेयर डिजाइन में क्या फर्क आएगा? सो इफ tau v greater than tau c, उसका मतलब क्या हुआ? डिजाइन फॉर shear reinforcement is required. पहले हमने डिजाइन नहीं किया, हमने मिनिमम ही प्रोवाइड किया, अभी हम डिजाइन करेंगे। राइट, डिजाइन फॉर shear reinforcement is required। ठीक है, तो अभी कैसे डिजाइन करेंगे? So there are two things that you need to understand for this design. एक तो हमने लिखा VU। What is VU? V is equal to design shear force। ये हमें रेजिस्ट करना है, इतना जनरेट हो रहा है इसलिए इसको रेजिस्ट करना है। वन मोर टर्म इज देयर VUC। VUC का मतलब क्या हुआ? shear strength of concrete। VUC, C stands for concrete, and one more term is there VUS। तो VUS का मतलब क्या हुआ? shear strength or shear resisted by S stands for stirrups। Right, so as I explained earlier that concrete is having capacity to take care the stresses, shear stresses। राइट, तो मुझे एक्चुअली क्या होना चाहिए कि जो मेरा टोटल है फोर्स, shear फोर्स, वो कौन कौन रेजिस्ट करना हो, कौन रेजिस्ट कर सकता है? एक तो कंक्रीट, अगर कंक्रीट नहीं करेगा तो मुझे कोई स्टीरअप की डिजाइन करनी पड़ेगी, वो रेजिस्ट करेगा। इज इट क्लियर दिस स्टेटमेंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट, चलो अभी ये VU तो आपके पास होगा, VU विल बी देयर। नाउ कमिंग टू VUC। VUC कैसे मिलेगा आपको? यू नो टाउ सी, अभी हमने देखा था टाउ सी। टाउ सी इज द शियर स्ट्रेस रेजिस्टेड बाय कंक्रीट। टाउ सी आपको पता है फोर्स का इक्वेशन, की फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, और स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। ठीक है, तो अगर मुझे इसको लिखना है तो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस क्या होगा? टाउ सी इंटू बी डी। कैन आई राइट दिस? Yes, ma'am. राइट, और प्लस ये देखो वी यू तो होगा आपके पास, टाउ सी बी डी होगा, अननोन इज वी यू एस। तो ये वी यू एस अगर मैं ऐसा लिखूँ कि जितना कंक्रीट लेने वाला है वो ले लेगा, बाकी का जो बचा है वो स्टीरअप लेगा, उसकी हम डिजाइन करेंगे। तो वी यू एस इज इक्वल टू, कैन आई राइट वी यू माइनस टाउ सी बी डी? कैन आई राइट दिस? Yes, ma'am. राइट, सो दिस इज द
shear force resisted by concrete. So again I am opening clause number 40, right. Over here it is mentioned that ये जो है ना 40.3 मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट जो हमने आगे जो एग्जांपल में किया वो कि व्हेन टाउ v इज लेस देन टाउ c गिवन इन टेबल नंबर 19, टेबल नंबर 19 मतलब यहाँ से हमने टाउ c जो फाइंड किया वो शेयर shall be provided according with 26.5.1.6 जो ये हमने क्लोज लिया था 26.5.1.6, तो ये स्टेटमेंट लिखा है बराबर। चलो अभी क्लोज नंबर 40.4 डिजाइन ऑफ शेयर एनफोर्समेंट। तो डिजाइन ऑफ शेयर एनफोर्समेंट के लिए यू रिक्वायर्ड टू यूज क्लोज नंबर 40.4। बराबर। अभी क्या लिखा है देखो, when tau v greater than tau c, the tau v greater than tau c, shear enforcement shall be provided in the following forms. Following forms means vertical shear. So you can do shear design. shear design करना है तो shear resist करने के लिए कौन कौन सा ऑप्शन है भी है। So vertical stirrup provide करो, bent up bar along with stirrup. Now this statement meaning is bent up bar along with stirrup. So I can show you over here, but I will explain the importance of bent up bar along with stirrup in other lecture. But bent up bar and stirrup both together means this type of figure, right? So if I can get yes, this is the beam. See over here some bars are straight, देखो यहाँ पे some bars are straight provided and 2 or 3 bars are straight up to this point, and then after it will bend and it will go up to at the top side, right? So this is called the bent up bar, right? This is called the bent up bar. There is a contribution of bent up bar in resisting the shear force, so that I will explain in my next lecture. But just keep in mind that bent up bar is also having the feasibility to take care the shear force, right? तो इसलिए यहाँ पे लिखा है यू कैन प्रोवाइड बेंट अप बार अलोंग विथ स्टीरअप। स्टीरअप तो प्रोवाइड करना ही है बट अलोंग विथ बेंट अप बार। एंड थर्ड इज इंक्लाइन स्टीरअप। थर्ड इज इंक्लाइन स्टीरअप। एज आई एक्सप्लेन इंक्लाइन स्टीरअप आप प्रोवाइड कर सकते हो। सो सम इंक्लाइन स्टीरअप if I can show you over here. This way. This is the inclined stirrups, right? Now see over here, shear enforcement shall be provided to carry a shear. Shear enforcement shall be provided. Shear enforcement मतलब stirrup can be provided to carry shear. Shear equal to, see this equation, VU minus tau C BD. Over here it is written, and same I have explained over here. Is it clear? Yes. Yes. Right. So now the strength of shear reinforcement shall be calculated. अभी जो तीन reinforcement, तीन type of shear आप resist करने के लिए provide कर सकते हो vertical. तो vertical stirrup कितना shear लेगा, bent up bar along with stirrup कितना shear लेगा,
और इंक्लाइन स्टीरअप कितना शेयर लेगा, तो उसके लिए अलग अलग इक्वेशन है। सो फॉर वर्टिकल स्टीरअप, अगर आप वर्टिकल स्टीरअप प्रोवाइड करते हो तो ये VUS का इक्वेशन है, VUS का इक्वेशन हमें मिल गया है कि वो कितना शेयर लेगा। अगर इंक्लाइन स्टीरअप आप प्रोवाइड करते हो तो उसका इक्वेशन है। अगर आप बेंट अप बार प्रोवाइड करते हो तो उसका ये इक्वेशन है। सो फॉर ऑल दिस 3 टाइप ऑफ shear arrangement the VUS equations are available, right? तो अभी डिजाइन करने के लिए आपको क्या करना है, सपोज वी आर प्रोवाइडिंग वर्टिकल स्टीरअप, राइट? So this is the equation for the vertical stirrup. तो अभी हमें कैसे करना है, देखो as I explained, VUS is equal to VU minus tau CBD। तो आपको क्या करना है, कब कहाँ तक का स्टेप होगा, देखो हमने जो ये यहाँ पे किया, वी हैव, हमारे पास ये वैल्यू होगा, टाउ वी की वैल्यू है, टाउ सी की वैल्यू है, तो हमें यहाँ से वी यू सी मिल जाएगा और हमारे पास ऑलरेडी वी यू अवेलेबल होगा, राइट? सो वी यू अवेलेबल होगा, टाउ सी अब फाइंड कर लो, बी डी कर लो, तो आपको यहाँ से वी यू एस का वैल्यू मिल जाएगा, समथिंग एक्स वैल्यू, एक्स किलो न्यूटन, राइट? तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर आप क्या करो, देखो ये इक्वेशन में एक स्पेसिंग है, डी की वैल्यू इज नोन, एफ आई की वैल्यू नोन, और दिस ए एस वी, अगेन ए एस वी आया, तो इसमें से अननोन क्या है, ये भी नोन हो जाएगा। तो अननोन क्या है, ए एस वी और एस वी। तो अगेन हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि अज्यूम 2 लेग 8 mm डायामीटर और 10 mm डायामीटर वर्टिकल स्टीरअप, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ वर्टिकल स्टीरअप। तो उसका ASV क्या होगा, अगेन 2 × π/4 8 स्क्वायर, राइट? तो वो समथिंग 100 mm स्क्वायर आपको ASV मिल जाएगा। फिर आप क्या करो, ASV की वैल्यू डालो, डी की डालो, FI VUS की डालो, यू विल गेट द स्पेसिंग। इजी? यस मैम। ठीक है। सो दिस इज क्लॉज नंबर 40.4। ये आपको 40.4 में से यूज करना है। अगर इंक्लाइन करते हो तो इंक्लाइन के लिए इक्वेशन यूज करो, यहाँ से आपको VUS की वैल्यू मिल जाएगी, ये इक्वेशन में से। एंड देन आफ्टर यू कैन फाइंड द स्पेसिंग। स्पेसिंग फाइंड करने के बाद अगेन यू नीड टू चेक 75D और 300 का क्राइटेरिया। और लास्ट स्टेटमेंट लिख दो। क्लियर? यस मैम। यस। ठीक है, चलो वन मोर थिंग कि यहाँ पे हमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का भी वैल्यू दिया है। दिस इज क्लॉज नंबर दिस 40.2.3। Under no circumstances, even with shear reinforcement, shall be nominal shear stress in beam tau v exceed tau c max given in table number 20। तो टेबल नंबर 20 में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू लिखी है, मतलब जो कंक्रीट है वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना ले सकता है। तो फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वैल्यू इज गिवन ओवर हियर। तो in any of the circumstances your tau v value should not more than tau c tau v value should not more than tau c max। ठीक है, मैक्सिमम से tau v की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर होता है then what you can do, what you need to do, अगर ऐसा कुछ होता है that your tau c maximum से भी tau v shear stress इतना होता है कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ से भी ऊपर चला जाता है, तो आप क्या करोगे, व्हाट यू रिक्वायर टू डू इज, क्रॉस सेक्शन। yes, you need to change the cross section because the only thing for
the influence of tau v is B and D, right? Force and B and D. आप लोड तो चेंज नहीं कर सकते, so you need to change the cross section, right? So this is all about the equations and all the things which is given in IS 456 related to shear design, right? अगर आप 45 डिग्री एंगल मतलब इंक्लाइंड बार करते हो तो अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री लेनी है, 45 डिग्री, ठीक है? और अगर बेंट अप बार करते हो तो जो बार आप बेंड करते हो, देखो ऐसा होता है, एक बार यहाँ से स्ट्रेट जाएगा और दूसरा बार होगा इसके ऊपर, अगर मैं बताऊँ तो दूसरा बार कैसा होगा कि यहाँ से स्ट्रेट जाएगा, फिर यहाँ से बेंट होके वो ऊपर चला जाएगा, ऐसे, राइट? तो ये जो बेंडिंग है वो भी 45 डिग्री एंगल पे, राइट? फिर एक और क्लॉज बताती हूँ आपको, ये Fy की वैल्यू फॉर स्टीरअप, जो स्टीरअप में इक्वेशन में जो भी Fy है, तो कोड ने लिमिटेशन दी है, दैट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टीरअप और बेंट अप रेनफोर्समेंट विच शैल नॉट बी टेकन एज नॉट बी ग्रेटर देन 415। तो Fe 415 से ऊपर का कोई भी ग्रेड आपको स्टीरअप के लिए यूज नहीं करना है। 415 से ऊपर कभी भी स्टीरअप का मतलब स्टील का ग्रेड 415 से ऊपर नहीं होगा स्टीरअप के लिए। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दैट? क्या हो सकता है रीजन? ग्रेड ऑफ का डाया बढ़ जाएगा। हाँ, यस, क्या? स्टीरअप का डाया बढ़ सकता है ना? स्टीरअप का डाया नहीं, नहीं, स्टीरअप का डाया नहीं बढ़ेगा। डाया बढ़ जाएगा, यस। तो डाया बढ़ेगा तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होगा? अगर डायामीटर बढ़ जाता है तो क्या प्रॉब्लम रहता है? अगर 415 से ऊपर करोगे तो डायामीटर रिड्यूस होगा, एरिया रिड्यूस होगा। मैंने अभी आपको बताया था, आगे ही बताया था, क्या होता है, जो कार्बन कंटेंट होता है, अगर ग्रेड ऑफ स्टील इंक्रीज जितना भी होगा, जितना इंक्रीज होता है उतना कार्बन कंटेंट भी इंक्रीज होता है। तो कार्बन कंटेंट इंक्रीज होने से क्या होता है, दैट योर स्टील इज रिड्यूसिंग द डक्टिलिटी। जो डक्टिलिटी पावर होता है, इलास्टिसिटी होता है, वो रिड्यूस होता है, बराबर? तो आपका जो स्टील होता है वो स्टिफ मटेरियल में चला जाता है, इलास्टिक मटेरियल में नहीं रहता है, राइट? अगर इलास्टिक में नहीं रहेगा, स्टिफ रहेगा, तो क्या प्रॉब्लम होगा, आपको बेंड करना है तो आप इजीली यू कैन नॉट एबल टू बेंड, एंड दैट्स व्हाई the grade of the steel is not more than 415. Is it clear everyone? Yes. यस मैम। चलो एक और क्लॉज लिख दो आप अपनी नोटबुक में, मार्क करके रखो, साइड फेस रेनफोर्समेंट। तो साइड फेस रेनफोर्समेंट का मतलब क्या हुआ, मैंने आगे एक वीडियो बताया था आपको, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव एक्सप्लेन यू कि जनरली हम डिज़ाइन क्या करते हैं कि हम बॉटम के बार की डिज़ाइन करते हैं, डबली होगा तो डबली में टॉप बार की भी डिज़ाइन करेंगे, ठीक है? बट समवेयर इफ द डेप्थ ऑफ द सेक्शन, ये डेप्थ ऑफ द सेक्शन इफ इट इज मोर देन 750 mm, तो वो डीप बीम बोलते हैं इसको, डीप बीम, जिसकी डेप्थ ज़्यादा होती है, राइट? डीप बीम। तो अगर ऐसा कोई डीप बीम होगा, देन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा साइड फेस रेनफोर्समेंट अलोंग द टू फेसेस। मतलब यू रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रेनफोर्समेंट ओवर हियर ऑल्सो एंड ओवर हियर ऑल्सो, राइट? तो कितना प्रोवाइड करना है, तो the total area of such reinforcement shall not be less than 0.1% of web area। मतलब एरिया उसका नॉट लेस देन 0.1% होना चाहिए, 0.1% ऑफ यहाँ पे जो आपने प्रोवाइड किया है उसका, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 0.1%, राइट? तो मतलब अगर आपका स्टील मतलब यहाँ पे कुछ 0.584 था आपका, तो
0.584 का 0.1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उतना आपको स्टील यहाँ पे प्रोवाइड करना है। कहाँ प्रोवाइड करना है? शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन 2 फेसेस, मतलब एक अगर 2 आता है तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, अगर 4 आता है तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, इस तरीके से इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और स्पेसिंग कितना रखना है? एट अ स्पेसिंग नॉट एक्सीडिंग 300 mm और वेब थिकनेस विच एवर इज ग्रेट। तो 300 mm से ज़्यादा स्पेसिंग नहीं रखना। स्पेसिंग का मतलब क्या हुआ? इन दोनों के बीच का स्पेसिंग। क्लियर? મેમ ટોપ ને બોટમ ના જે સ્ટીલ નો એરિયા છે એનો 0.1% કરશે ના, ટેન્શન રેન્ફોર્સમેન્ટ ના, ઓકે ઓનલી ટેન્શન રેન્ફોર્સમેન્ટ, રાઈટ? Then do we have check for minimum area of steel for beam? बीम में मिनिमम कितना एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करना है उसका चेक कर लिया है हमने? आई थिंक नहीं किया है ना? फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट, देखो बीम में भी है, कॉलम में भी होगा, स्लैब में भी होगा। फॉर ईच एंड एवरी reinforced concrete element, code has given the minimum and maximum requirement of percentage steel to be provided. तो बीम के लिए देखो ये क्लॉज याद रखना, नोटबुक में लिख लेना। 26.5.1.1 टेंशन रेनफोर्समेंट, मतलब जो हम AST फाइंड करते हैं या PT फाइंड करते हैं, तो ये मिनिमम कितना होना चाहिए कोड के हिसाब से, राइट? So the minimum area of tension reinforcement shall not be less than ये इक्वेशन, बराबर? तो ये इक्वेशन यूज करना है। तो अभी ये देखो मैं आपके इसमें मैं बताती हूँ। अवर वैल्यू वॉज AST हमने यहाँ से मिला, यहाँ पे ये रहा, आपको यहाँ से AST मिला था, राइट? ये 502 mm²। अभी ये हमें चेक करना है कि ये वैल्यू इज ग्रेटर देन AST मिनिमम और नॉट। आपके नोटबुक में भी लिख लेना, बराबर? ये वैल्यू मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट है कोड के हिसाब से, आपकी वैल्यू मिनिमम से कम है या ज़्यादा वो देखना है। अगर ज़्यादा है देन इट इज़ ओके, अगर कम है, इफ मिनिमम से भी कम है, तो एज पर कोडल प्रोविजन यू नीड टू एटलीस्ट प्रोवाइड द मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो वो हमें कैसे मिलेगा? बाय दिस इक्वेशन जो मैंने अभी बताया। यहाँ पे AS का मतलब क्या है? AST अपॉन BD इज इक्वल टू 0.85 अपॉन FY, ठीक है? तो यहाँ पे AST को फाइंड कर लो, बाकी सब वैल्यू होगी आपके पास। सो आई एम फाइंडिंग ओवर हियर AST इज इक्वल टू क्या होगा? AST इज इक्वल टू 0.85 BD अपॉन FY, 0.85 BD अपॉन FY, ठीक है? ये कौन सा क्लॉज है? 26.5.1.1। क्लॉज 26.5.1.1। चलो यहाँ से फाइंड करो। 0.85 B is 215, D is 400 divide by 415, 176.14 176.14 mm², राइट? तो AST मिनिमम हमारा 176.14 है, ठीक है? और आपने कितना प्रोवाइड किया है? 628 यहाँ पर, ये देखो या ये देखो 502, तो उससे ज़्यादा है। सो चेक फॉर मिनिमम रिक्वायरमेंट इज ओके।
अगर आपका ये AST सपोज 150 mm² आता तो आपको कितना एटलीस्ट प्रोवाइड करना है 176. इज इट क्लियर? यस मैम. है ना? तो ये बहुत सारा कुछ ऐसा है कि आपको जब आप डिजाइन करते हो उसी टाइम पे पैरेलल आपको ये कर लेना है, अलग से कोई स्टेप नहीं बनाना है. ये चेक्स जो छोटे छोटे होते हैं वो आपको अलग से नहीं बनाना है. ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ. आई विल अपलोड दिस PPT. यही ऐसा ही मैं अपलोड कर दूँगी. राइट. और ये तो हुआ टेंशन के बार के लिए मिनिमम. अभी मैक्सिमम भी है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शैल नॉट एक्सीड 0.04 इंटू B कैपिटल D. मतलब 4%. इजी वे में याद रखना हो तो बीम में 4% से ज़्यादा रेनफोर्समेंट नहीं होना चाहिए. राइट. तो ये हो गया AST मैक्सिमम. तो अगर AST मैक्सिमम का भी आपको चेक यहाँ पर ही कर लेना है, over here only you can do the maximum check. तो this value यहाँ से should not more than AST max, so is equal to 0.04 B into capital D. ठीक है, तो ये कितना होगा, चलो फाइंड करो. जीरो 0.04 B इंटू कैपिटल D क्या है आपका? 430. So 0.04 into 215 into 430. चलो चलो जल्दी जल्दी 0.04 इंटू 215 इंटू 430 करो. 3698 mm². बराबर. तो कभी आपको ये भी देखना है कि आपका AST मैक्सिमम से ऊपर तो नहीं चला गया. ऐसे चेक्स यहाँ पर ही कर लेने हैं आपको. नो नीड टू डू सेपरेटली. आपको यहाँ से ही आपको ये सब चेक्स कर लेने हैं. ठीक है. यस. ये सब चेक्स एग्जाम में लिखना पड़ता है. हाँ, करना पड़ता है, करना पड़ता है. Right. So almost all the again one more compression reinforcement. हम जब डबली की डिजाइन करेंगे तो कंप्रेशन की भी डिजाइन करें. तो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट में भी ऐसा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन 4, मतलब जो टॉप में जब हम डिजाइन करें, अभी तो हमने बॉटम के बार का डिजाइन किया, क्योंकि जब हम टॉप के बार का डिजाइन करेंगे तो ये टॉप का बार जो है ये भी AST जो होगा ASC होगा. टॉप के लिए हम ASC लिखते हैं, बॉटम के लिए AST लिखते हैं, बॉटम के लिए AST लिखते हैं. ठीक है. एरिया ऑफ स्टील टेंशन, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन. तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये जो यहाँ पे 4% लिखा है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. क्लियर? So this is all about your singly reinforced beam design. ये पूरा हमने सिंगली बीम का डिजाइन किया along with shear design. अगर टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी आता है तो कैसे करना है डिजाइन, वो भी मैंने आपको इसमें बता दिया है. तो अगर आप कुछ असाइनमेंट करते हो या फिर एग्जाम में टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी आता है तो इस तरीके से आपको उसकी डिजाइन करनी है. इज इट क्लियर? राइट. तो
is all about the singly reinforced beam design. We will do doubly reinforced beam design in next lecture. In one lecture only we can finish the doubly reinforced beam design, because if you are now comfortable with the design of beam for singly, then for doubly beam design it is very easy, and now is you can easily understand how to do the doubly reinforced beam design. Again we will see annexure G. ये जो annexure G हमने सिंगली के लिए जो इतने इक्वेशंस हमने डिराइव किए थे, राइट, तो डब्ली के लिए ये ही क्लॉज है यहाँ पे G1.2. तो ये है डब्ली के इक्वेशंस. डब्ली में इक्वेशंस बहुत सारे डिराइव नहीं करने होते हैं, राइट. All the equations are given over here only, so we can easily do the design in 1 hour. ठीक है. क्या चेंज आएगा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ. सपोज कोई बीम लिया हमने, यही बीम सोचो, सपोज यही बीम है, ये कैलकुलेशन तो डब्ली में भी करना है, ये भी करना है, इफेक्टिव लेंथ, डिजाइन लोड भी फाइंड करना है, एमयू भी फाइंड कर. कहाँ से चेंज होगा, यहाँ पे एमयू ग्रेटर देन एमयू लिम आ जाएगा. तो उसके बाद आपको जो एरिया ऑफ रेनफोर्स मतलब स्टेप नंबर 7 से आपका डिजाइन चेंज होगा, राइट. तो स्टेप नंबर 7 चेंज होगा. स्टेप नंबर 8 मेथड ये रहेगा, लेकिन 2 बार आपको फाइंड करना है, बार्स, 2 बार्स यू नीड टू फाइंड एरिया ऑफ स्टील फॉर टेंशन एंड एरिया ऑफ स्टील फॉर कंप्रेशन. डब्ली में दोनों साइड पे रेनफोर्समेंट आते हैं, मेन रेनफोर्समेंट, ठीक है. फिर ये चेक फॉर डिफ्लेक्शन तो आपको इसमें भी करना है, डिटेलिंग की फिगर इसमें भी ड्रॉ करनी है. डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट विल रिमेन सेम, डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट विल रिमेन सेम, ठीक है. सो यहाँ पे जो आप परसेंटेज स्टील प्रोवाइड करते हो ये, तो डब्ली की डिजाइन में भी आपको टेंशन के बाद जो टेंशन बार होता है उसका ही परसेंटेज लेना है, कंप्रेशन का नहीं लेना. सो दिस मेथडोलॉजी ऑल्सो विल रिमेन सेम, ठीक है. Is it clear? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay, so we will continue in next lecture. We'll finish doubly beam design probably in next week, and then after, once we finish doubly beam, I will show you 1 or 2 small example of shear reinforcement, like जो भी मैंने बोला था बेंटअप बार का, वो मैं आपको उसका एक छोटा सा एग्जांपल करवा दूंगी. And then after, once we finish the doubly beam design, we will start with the design of slab. Slab की डिजाइन करेंगे. So probably in your first internal exam, slab will be in your syllabus. Slab भी हम complete कर देंगे. But do practice all this design example. कहाँ से कौन सी वैल्यू लेनी है, कैसे परसेंटेज स्टील फाइंड करना है, कैसे एरिया ऑफ स्टील फाइंड करना है, बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड करना, वो सब देख लो. बिकॉज स्लैब इज अ काइंड ऑफ बीम ओनली. स्लैब भी फ्लेक्सर मेंबर ही है, तो स्लैब की डिज़ाइन भी ऐसी ही आएगी. ओनली सम क्राइटेरिया विल चेंज, द क्लॉजेज विल चेंज. अदर देन दैट स्लैब डिज़ाइन और बीम डिज़ाइन सेम होती है, ठीक है. तो इफ यू नो द बीम डिजाइन, इफ यू आर कंफर्टेबल विद द बीम डिजाइन, उसके बाद आपको कोई भी डिजाइन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. चलो, ओके, यू कैन लीव. Thank you, ma'am. यस, Thank you, ma'am. हाँ, ओके.